Hello friends, welcome to Balkishar Premier Academy, one of the most pioneer institute for GATE, IES and PSU examination. In this video, we are going to discuss about the doping process inside the semiconductor. तो ये doping process क्या है? Doping process का मतलब होता है it is a process of adding the impurities inside the semiconductor. Suppose मेरे पास जो semiconductor bar है, suppose this is an semiconductor bar and it is an intrinsic semiconductor bar. Since it is an intrinsic semiconductor bar, so the electron concentration, that is the N, and the hole concentration, that is the P, ये दोनों same होंगे because it is an intrinsic semiconductor and this must be equals to the intrinsic carrier concentration of the material. And if we apply the mass action law, then it will be N into P is equals to Ni square. ये हम लोग बोल सकते हैं using the mass action law and using the definition of the intrinsic semiconductor. So a intrinsic semiconductor के अंदर जितने amount of electrons है उतने amount of holes है. But now we want to vary the concentration of the carriers. मतलब मैं ये equals to नहीं रहना चाहता. We have to put extra amount of electrons or we have to put extra amount of holes so that the N not equals to P. So for that we need to add some impurities inside the semiconductor. और जिस process से हम लोग ये impurity addition करेंगे उसी को बोलेंगे doping. That means doping is a process. ये जो doping है, doping is a process of adding impurities inside the semiconductor. और जब मैं ये कौन से semiconductor, generally intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor के अंदर भी doping कर सकते हैं उसका impurity level increase करने के लिए. generally अभी हम लोग सोचेंगे कि it is a process of adding the impurities inside the semiconductor. जब impurity add कर देंगे, when we add the impurity, the semiconductor, ये जो semiconductor है, this semiconductor will become extrinsic semiconductor. ये हो जाएगा extrinsic semiconductor because extrinsic semiconductor का definition क्या था? Extrinsic semiconductor का definition ये था कि उसके अंदर हम लोग जानबूझ के कुछ impurity डालेंगे to vary the characteristics of the material. तो हमने यहाँ पे ऐड किया जानबूझ के adding impurities inside the semiconductor, वो हो जाएंगे extrinsic semiconductor. Now what are the impurities, what are the types of impurities हम लोग डाल सकते हैं? कौन सा impurity हम लोग डाल सकते हैं? Generally two types of impurities are doped. The first, there are two types of impurity can be doped inside the semiconductor. पहला जो impurity होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि trivalent dopant. और next impurity is pentavalent dopant. अब ये dopant का मतलब क्या है? dopant का मतलब है impurities जो हम लोग डोप कर रहे हैं, जिस मेटेरियल को अंदर डाल रहे हैं उसी को बोलेंगे dopant. dopant are the impurities. So मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि dopants is nothing but the impurities. impurities को हम लोग dopant बोलेंगे. So दो types का impurity है, एक है trivalent dopant, another one is pentavalent dopant. So what is trivalent dopant? trivalent dopant का मतलब होता है, ये जो trivalent dopant है, trivalent मतलब इसका valency 3 है.
तो इसका वैलेंसी विल बी 3। वैलेंसी 3 मतलब इसका आउटर ऑर्बिट्स में, इसके जो आउटर ऑर्बिट्स होंगे डोपेंट्स का, ट्राइवेलेंट डोपेंट का, उसके आउटर ऑर्बिट्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे जनरली बिलोंग्स टू ग्रुप 3 ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के ग्रुप 3 जो एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम लोग ट्राइवेलेंट डोपेंट्स बोलते हैं। और जो पेंटावेलेंट डोपेंट है, वो पेंटावेलेंट डोपेंट में, पेंटावेलेंट का मतलब है इसका वैलेंसी 5 होगा। दैट मीन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड दे बिलोंग्स टू ग्रुप 5 ऑफ द पीरियडिक टेबल। ये ग्रुप 5 में रहता है। जैसे if I take the example, what will be the examples of trivalent dopant? Trivalent dopant के लिए मेरा आएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम और आएंगे गैलियम, इंडियम। All these are trivalent dopant. So बोरॉन का साइन होगा B, ये है मेरा Al एंड ये होगा गैलियम एंड ये होगा इंडियम। Similarly, if I take the example of pentavalent dopant, so pentavalent dopant में आते हैं phosphorus, फिर आएंगे bismuth, Bi for bismuth, फिर आएंगे arsenic, As, फिर antimony, Bsb. So these are the examples for group 5 elements which are used for pentavalent dopant, and these are the examples for group 3 element which are used for trivalent dopant. Now generally देखा गया है कि if I think about the silicon material को मुझे अगर डोप करना है, generally देखा गया है कि ये जो फास्फोरस होते हैं और ये जो बोरॉन होते हैं, ये दोनों मटेरियल ज्यादा यूज होते हैं बिकॉज सिलिकॉन की तरफ ये बोरॉन और फास्फोरस का जो एफिनिटी होता है सबसे ज्यादा होता है अमंग दिस मटेरियल्स। So for doping the silicon, generally the phosphorus materials are used for making the material pentavalent doped, and अगर मुझे ट्राइवेलेंट डोप करना है सिलिकॉन को तो हम लोग जनरली बोरॉन को यूज करते हैं बिकॉज ये दोनों मटेरियल का एफिनिटी ज्यादा होता है टुवर्ड्स द सिलिकॉन। नाउ हमने देखा अभी कि कौन सा impurities हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक है पेंटावेलेंट, another one is trivalent. Now let us see कि ये जो डोपिंग प्रोसेस है, ये डोपिंग प्रोसेस हम लोग कितने अमाउंट पे डाल सकते हैं, हाउ मच अमाउंट कैन वी डोप द impurities inside the semiconductor। तो उसके लिए क्या होगा कि we have to see that how much amount of dopant should be doped inside the semiconductor, and depending on that doping process का बहुत ही अलग अलग कैटेगरी होता है। सो मैं लिख सकता हूँ कि डिपेंडिंग on the amount of dopant, depending on the amount of dopant, जो डोपेंट हम लोग डालेंगे उसके ऊपर डिपेंड करके मेरा जो डोपिंग प्रोसेस होता है, doping process are of 3 categories. So this is the first category, this is the second category, and there will be another category in this way. So what is the first category of doping depending on the amount of dopant? So the first category that is called is lightly doped. Lightly doped. The second one is the moderately doped. Moderately doped. The third one is the highly doped. Highly doped. So lightly doped का मतलब क्या होता है?
लाइटली डोप को हम लोग, अगर सपोज मान लीजिए लाइटली डोप को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं 1:10⁻11 के रेस्पेक्ट में, और मॉडरेटली डोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1:10⁻6 टू 10⁸ के रेस्पेक्ट में, और हाईली डोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1:10⁻3 के रेस्पेक्ट में। अब ये जो मैंने रेशियो डाला है, ये रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब है, अगर सपोज मेरे पास एक सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन मटेरियल है, सपोज आई हैव एन सिलिकॉन मटेरियल, मैं सिलिकॉन के रेस्पेक्ट से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज आई हैव अ सिलिकॉन मटेरियल, and in this silicon material we know that we have 5 × 10⁻22 atoms per सेंटीमीटर क्यूब। ये सिलिकॉन एटम का एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन है। तो हर वॉल्यूम में मुझे 5 × 10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन एटम। नाउ मैं अगर लाइटली डोप करना चाहता हूँ, सो मैं हर एक इसमें से हर एक 10⁻11 सिलिकॉन एटम्स के लिए हम लोग 1 इम्प्यूरिटी एटम डालेंगे। 1 impurity atom will be added. So we can see that in 1 centimeter cube volume, how many silicon atoms are there? There are 5 × 10⁻22 atoms of silicon. तो मुझे अगर लाइटली डोप करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सो लाइटली डोप करने के लिए मुझे मालूम है कि 10⁻11 सिलिकॉन एटम्स के लिए मुझे 1 डोपेंट एटम डालना है। 1 डोपेंट एटम डालना है। सो 10⁻22 है यहाँ पे। सो इट इज 1 × 10⁻11 के लिए मुझे 1 डोपेंट एटम डालना है। सो सिमिलरली नाउ वी कैन से दैट अगर मुझे 5 × 10⁻22 एटम्स सिलिकॉन के लिए कितने डालना होंगे? सो इफ यू वांट टू फाइंड देन 1 सिलिकॉन एटम के लिए मेरा आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻11 डोपेंट एटम्स, और 5 × 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स के लिए मेरा जो नंबर ऑफ डोपेंट्स आएंगे, सो 5 × 10⁻22 इसके लिए आएगा 1 × 10⁻11 dopant atoms. So ultimately, if I cut down this, then it will come as 5 × 10⁻22 minus 11. So ये आ जाएगा 11. Number of, this is the number of dopant atoms. इतने सारे डोपेंट एटम्स रहेंगे पर यूनिट वॉल्यूम पे। ये कहाँ पे है? 1 सेंटीमीटर क्यूब पे। तो मैंने देखा कि फॉर लाइटली डोप, ये लाइटली डोप के लिए मुझे मिला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर सिलिकॉन के लिए डोपेंट एटम का नंबर होगा 5 × 10⁻11 डोपेंट एटम्स सिलिकॉन के लिए। मैंने सिलिकॉन एज्यूम किया था। So that means for 10⁻11 number of silicon atoms, we have to dope 1 impurity atom. Now let us see what is moderately doped. So moderately doped के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 10⁻6 to 10⁻8 number of silicon atoms के लिए मुझे 1 impurity atom डालना है। So if I calculate it for silicon, तो silicon के जो atomic concentration होता है, so atomic, अभी अभी मैंने देखा
कि एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन जो होंगे दैट इज 5 into 10 to the power 22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे अगर मॉडरेट डोप करना है, सो मॉडरेट डोपिंग, अगर मुझे मॉडरेट डोपिंग डालना है, सो मॉडरेट डोपिंग के लिए मेरा जो इम्प्यूरिटी रेशियो है दैट इज 10 to the power 6 to 10 to the power 8। सो 10 to the power 6 भी ले सकते हैं, 10 to the power 8 भी ले सकते हैं। सो लेट अस टेक एज 10 to the power 6। तो मुझे मालूम है कि 10 to the power 6 सिलिकॉन एटम के लिए मेरा जो इम्प्यूरिटी एटम का नंबर होंगे दैट इज 1 impurity atom, 1 impurity atom। So 5 into 10 to the power 22 सिलिकॉन एटम के लिए मेरा जो इम्प्यूरिटी नंबर होंगे, क्या होंगे इम्प्यूरिटी एटम्स का नंबर, वो होगा 5 into 10 to the power 22 divided by 10 to the power 6 number of impurity atom। So if I calculate, then I will get 5 into 10 to the power 22 minus 6, 22 minus 6 number of impurity atom। So I will get it as 5 into 10, ये आएगा 6, that is 16 impurity atoms, impurity atoms। So now in the previous lightly डोप में हमने देखा था कि नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स जो था डोपेंट एटम्स 5 into 10 to the power 11 था। सो इन दिस, सो मॉडरेटली डोपिंग के खेत जाने में यहाँ पे मैंने देखा मॉडरेट डोपिंग। सो लाइटली डोप केस में मैंने जो पर यूनिट वॉल्यूम पे इम्प्यूरिटी एटम्स दिखे थे, वो पर यूनिट वॉल्यूम पे जो इम्प्यूरिटी एटम्स था वो था 5 into 10 to the power 11। नाउ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 into 10 to the power 11 इम्प्यूरिटी एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और मॉडरेट डोपिंग के लिए मैंने देखा यहाँ पे 5 into 10 to the power 16 इम्प्यूरिटी एटम्स पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो मॉडरेट डोपिंग में ज्यादा इम्प्यूरिटी एटम मुझे चाहिए। हमने यहाँ पे देखा कि जो लाइटली डोप्ड है उसके लिए मुझे कितना एटम्स इम्प्यूरिटी एटम्स चाहिए 5 into 10 to the power 11, और मॉडरेट डोप के लिए मुझे 5 into 10 to the power 16 इम्प्यूरिटी एटम्स चाहिए, तो ज्यादा इम्प्यूरिटी एटम्स चाहिए। सिमिलरली हाईली डोप्ड के लिए भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो अगर हाईली डोप्ड के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, सो लेट अस कैलकुलेट फॉर हाईली डोप्ड। तो हाईली डोप्ड मटेरियल के लिए मुझे मालूम है कितना चाहिए, तो 10 to the power 3 सिलिकॉन एटम्स के लिए मेरा जो इम्प्यूरिटी एटम्स चाहिए 1 इम्प्यूरिटी एटम, 1 इम्प्यूरिटी एटम। तो मुझे 10 to the power कितने एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम पे, सो 5 into 10 to the power 22 सिलिकॉन एटम्स के लिए मेरा जो इम्प्यूरिटी एटम्स जरूरत है और हाईली डोप, सो आई नीड it as 5 into 10 to the power 22 divided by 10 to the power 3 impurity atoms, इतने चाहिए। So after calculation we can get 5 into 10 to the power 19 impurity atoms। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं लाइटली डोप करता हूं तो इम्प्यूरिटी एटम के नंबर 5 into 10 to the power 11 पर यूनिट वॉल्यूम पे,
और जब मॉडरेट डोप करता हूँ तो 5 × 10⁻16 नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स और 5 × 19 नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स मुझे चाहिए फॉर हाईली डोप। सो हाईली डोप के अंदर मेरा ज्यादा इम्प्योरिटी एटम्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम पे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स विल बी हाईएस्ट। एंड फॉर मॉडरेट डोप के लिए थोड़ा अच्छा मॉडरेट डोपिंग होगा और लाइटली डोप के लिए एकदम ही कम होंगे। सो द डोपिंग, so we can say that as the concentration of the carrier मतलब ये जो impurity atoms है, so number of impurity atoms is equals to number of carriers will be generated. Now let us see that, तो मैंने देखा कि lightly डोप के लिए ये जो lightly डोप्ड मटेरियल था, ये lightly डोप्ड मटेरियल और बीच में था मेरा मॉडरेट डोपिंग और यहाँ पे था हाईली डोप्ड। ये तीन तरीके का डोपिंग मेरे पास था और मैंने देखा कि इसके अंदर मेरा जो इम्प्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन होगा, इम्प्यूरिटी एटम कॉन्सेंट्रेशन जो था वो था सबसे लोएस्ट, और इसमें था इम्प्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाईएस्ट था और इसमें मॉडरेट था, नाउ ये जो डोपिंग, दैट मीन्स यहाँ पे डोपिंग हाईली डोप के लिए डोपिंग सबसे ज्यादा होता है। सो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे डोपिंग सबसे ज्यादा था, डोपिंग इज हाईएस्ट, एंड यहाँ पे डोपिंग सबसे लोएस्ट था। ये टर्मिनोलॉजी है, आपको समझना होगा। और यहाँ पे डोपिंग मॉडरेट था। जितने ज्यादा डोपिंग होंगे उतने ज्यादा आपका इम्प्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन होगा, और ये जो डोपिंग है और जितना ज्यादा इम्प्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन होंगे उतने ज्यादा आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। सो मैं लिख सकता हूँ इफ द डोपिंग इंक्रीजेस, ये डोपिंग अगर इंक्रीज करते हैं तो मेरा जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होगा, मेरा जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होंगे, दैट कैरियर कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज। और जितना मेरा कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा उतना क्या होंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर जिसके अंदर मैंने डोप किया है उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होंगे। सो इन दिस वे वी कैन से कि मुझे अगर हाई कंडक्टिविटी चाहिए तो मुझे ज्यादा डोपिंग डालना है, तभी मुझे हाई कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन, तभी मेरा कंडक्टिविटी हाई होंगे। जनरली इट इज सीन दैट अ हाईली डोप्ड, अब हाईली डोप्ड जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर्स को बोला जाता है कि these are generally degenerate semiconductors, and जो moderately doped होते हैं, moderately doped semiconductors होते हैं, the moderately doped semiconductors are non-degenerate semiconductor, non-degenerate semiconductor। non-degenerate semiconductors। नाउ ये जो डोपिंग मैंने डाला, तो डोपिंग का कैटेगरी कितना हुआ, एक लाइटली डोप और मॉडरेटली डोप एंड हाईली डोप्ड। और ये जो डोपिंग का कैटेगरी मैंने डाला है, दिस डोपिंग कैटेगरी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डोपेंट, कितने डोपेंट डाला है उसके ऊपर क्लासिफिकेशन। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ classification of the doping process,
depending on the amount of doping or the distribution of doping. That means, let us say, depending on doping doping or we can say doping atoms distribution, डोपिंग एटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करके जो डोपिंग प्रोसेस होता है, दैट डोपिंग प्रोसेस आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म डोपिंग प्रोसेस, अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग प्रोसेस। अब जो यूनिफॉर्म डोपिंग प्रोसेस होता है वो क्या है, उसको देखना है। यूनिफॉर्म डोपिंग प्रोसेस का मतलब है, सपोज आपके पास अगर एक सेमीकंडक्टर बार लेते हैं, so this is a semiconductor bar. So in this semiconductor bar, if we dope, मैं डोप मतलब बाहर से कुछ इम्प्यूरिटी यहाँ पे डालूंगा, तो मैं अगर हर एक पॉइंट पे, हर एक वॉल्यूम पे सेम अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी डालता हूँ, सो इफ आई डोप द सेमीकंडक्टर बार, ये जो सेमीकंडक्टर बार है, ये सेमीकंडक्टर बार को अगर मैं बाहर से इम्प्यूरिटी डालूंगा तो हर एक वॉल्यूम पे, हर एक यूनिट वॉल्यूम पे अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी डोप करता हूँ तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म डोपिंग प्रोसेस। मतलब इफ आई डिवाइड, अगर छोटे छोटे पार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर का ऐसा, इफ आई डिवाइड द सेमीकंडक्टर इन दिस स्मॉल स्मॉल पार्ट, देन इन एवरी पार्ट्स द कंसंट्रेशन और द डोपिंग जो डाले हैं मैंने वो सेम डाला है। दैट इज, अगर सभी जगह पे लाइटली डोप तो सब जगह पे लाइटली डोप, अगर सभी जगह और कोई एक जगह पे हाईली डोप तो सभी जगह पे हाईली डोप, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डोपिंग। सो यूनिफॉर्म डोपिंग के अंदर क्या होता है कि अब मैं अगर इसके x बराबर, सपोज इसको मैं x मानता हूँ, ये मेरा x डिस्टेंस है, इफ आई वांट टू प्लॉट द concentration of the impurity atom with the distance, टू डायमेंशन के बाद बोल रहा हूँ, सो यहाँ पे impurity एटम कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे इम्प्यूरिटी एटम का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, दैट इम्प्यूरिटी एटम कॉन्सेंट्रेशन को मैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर रहा हूँ। इफ आई प्लॉट दैट फॉर यूनिफॉर्म डोपिंग, तो हर एक पॉइंट्स पे मुझे सेम कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे, दैट मीन्स इट विल हैव अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। सो ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पे मुझे सेम अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन मिलता जाएगा। बट इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, सो नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग में मैंने सपोज मेरे पास एक सेमीकंडक्टर बार है इस तरीके का, तो इन दिस सेमीकंडक्टर बार मैंने क्या किया, मैंने जो डोपिंग डाला, दैट डोपिंग सपोज मैंने सिर्फ यहाँ से डाला और किसी जगह से नहीं, सिर्फ यहाँ से डोपिंग मैंने डाला। अगर यहाँ से डोपिंग डालेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डोपिंग। सो डोपिंग इज डन फ्रॉम दिस एज ओनली। सो ये वाले पोजीशन पे, ये वाले एरिया पे मेरा डोपिंग इम्प्यूरिटी जो एटम का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सबसे ज्यादा होंगे, और ये वाले एरिया पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। सो नाउ इफ आई वांट टू प्लॉट द इम्प्यूरिटी concentration with respect to distance x, so in the y axis I am plotting impurity atom concentration। अगर ये मैं प्लॉट करता हूँ इम्प्यूरिटी एटम का कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा, सो दैट प्लॉट क्या होगा कि ये वाले रीजन पे मेरा डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होंगे और यहाँ पे कम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरा डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मैं जितना अंदर की तरफ जाऊंगा तो मेरा डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, सो इट विल फॉल एक्सपोनेंशियली, एंड दिस इज कॉल्ड द इम्प्यूरिटी एटम प्रोफाइल। इम्प्यूरिटी एटम का प्रोफाइल है,
This is impurity atom profile. So you can see the impurity atoms profile is not constant or uniform in this semiconductor. इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग. और यूनिफॉर्म डोपिंग के अंदर मैंने देखा कि impurity atom का concentration profile is constant with respect to the distance of the inside the semiconductor. So ये जो यूनिफॉर्म डोपिंग प्रोसेस है, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग प्रोसेस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चाहिए. डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोपिंग चाहिए. नाउ ये जो इम्प्योरिटी प्रोफाइल विल बी कहाँ पे मैक्सिमम है? मैंने देखा कि इम्प्योरिटी प्रोफाइल विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द सेमीकंडक्टर वेयर द डोपिंग इज डन. मैंने डोपिंग यहाँ से डाला है, तो यहाँ से अगर डोपिंग डाला है तो मैं बोल सकता हूँ ये वाले पर जो डोपिंग डाला है, तो ये वाले प्रोसेस सरफेस पे मैंने डोपिंग डाला है, तो यहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होंगे. और जितने अंदर की तरफ मैं जाऊंगा तो मेरा डोपिंग इम्प्योरिटी एटम का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा इस तरीके का. तो मैं देख रहा हूँ कि इम्प्योरिटी एटम्स का प्रोफाइल यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है. अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग के अंदर, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट? लेट अस सी. So let us see the effects in the non-uniform doping. तो उस केस में मैं अगर effects के बारे में बात करता हूँ, so effects क्या है? So non-uniform doping के अंदर effects क्या है? Non-uniform doping के अंदर what will be the effects? तो पहला जो effects होंगे, the effects that doping profile जो होगा, that doping profile, that is a non-uniform doping profile. So non-uniform डोपिंग प्रोफाइल आएंगे. और दूसरा क्या होगा? नेक्स्ट चीज क्या होंगे? डोपिंग प्रोफाइल जो इम्प्योरिटी प्रोफाइल होंगे, दैट इम्प्योरिटी प्रोफाइल, ये जो नॉन यूनिफॉर्म इम्प्योरिटी प्रोफाइल है, दैट विल प्रोड्यूस एन बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे. or we can say internal electric field will be produced due to this non-uniform doping profile. तो इसीलिए इसके अंदर कुछ ड्रिफ्ट मोशन ऑफ कैरियर्स, ड्रिफ्ट कैरियर मोशन दिखा जाएगा. ड्रिफ्ट कैरियर्स मोशन हम लोग देख पाएंगे. सिमिलरली मैंने अभी अभी यहाँ पे देखा है कि ये वाले सेक्शन के अंदर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स ज्यादा है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक एक डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगी. सो मैं लिख सकता हूँ अ डिफ्यूजन ऑफ impurity, diffusion of the impurity atoms, diffusion of the impurity atoms carrier will be produced, will be produced. डिफ्यूजन प्रोसेस भी मुझे मिलेंगे और ड्रिफ्ट प्रोसेस भी मुझे मिलेंगे. ये दोनों प्रोसेस सेमीकंडक्टर्स के अंदर मिलेंगे इन द नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग. So this is all about the doping process inside the semiconductor, where we can see the doping can be of different types: lightly doped, moderately doped, highly doped, and depending on the doping profile, we can say that doping are of two types: uniform doping and non-uniform doping. और non-uniform doping के अंदर मुझे non-uniform doping profile मिलेंगे, built in electric field मिलेगा, diffusion process मिलेंगे, drift motion मिलेंगे. In this way, we can see the non-uniform doping profile. In the end, do not forget to like and subscribe our channel to get more videos. Thank you.